of the hour, this election season seems to be a war of different narratives. However, with the politics of hate that has now hit a new low in Maharashtra, especially right after extending support to the MV or the Mahavikas Aghadi, the All India Muslim Personal Law Board member and Muslim cleric Sajjad Nomani has now issued a fatwa against those supporting the BJP and backing the Prime Minister. In a public message, Nomani said that those who support the BJP during the Lok Sabha elections should be socially boycotted. Nomani even questioned how can one vote for the Wati that has destroyed their masjids. Not just issuing fatwas, Nomani is also mobilizing Muslim voters for the MVA, where they have already given an open call backing to the opposition candidates in Maharashtra. Nomani has also justified his remark and questioned how can vote jihad be branded when a political strategist like Sharad Pawar steered the entire campaign. Listen in. मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या क्या बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। Well, reactions that have been coming in now from the BJP, which has launched a scathing attack at the MVA, claiming that Aghadi was desperate to win at any cost and was even willing to keep Sharia above the constitution if need be. In fact, BJP leader Kirit Somaia has even filed a complaint claiming speech amounted to vote jihad. It is a hate speech strategy that seems to be taken up by the All India Muslim Personal Law Board when it comes to extending support to the MVA. I've filed complaint with the Election Commission requesting to take action against Maulana Sajjad Nomani. There are two videos which have been viral in social media. Maulana ji is asking the Muslim community to boycott all those Muslim supporters who have supported or supporting BJP. And I requested Election Commission, it is a purely violation of code of conduct, making appeal in the name of religious, exploiting the religious feelings, provoking them. I'm very much confident Election Commission will take action. अब उद्धव ठाकरे से मैं पूछना चाहता हूं, आप तो हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे नहीं बोल पाते। आप तो राहुल गांधी से सावरकर जी और बाबा साहब ठाकरे की प्रशंसा नहीं करवा पाते। आज बताइए कि ये आप इनके अजीम सिपाही हैं जो शरिया लागू करना चाहते हैं, जो 10% मुस्लिम आरक्षण देना चाहते हैं, जो वोट जिहाद चाहते हैं। राहुल गांधी का तो पता ही है वो है, पर आप कब से बन गए? ये मौलाना सज्जाद नुमानी वही व्यक्ति हैं जिसने महाविनाश अघाड़ी को महाराष्ट्र में बैक किया है। मतलब साफ है कि महाविनाश अघाड़ी की अगर सरकार आएगी तो नॉन मुस्लिम्स के जीवन शैली को महाराष्ट्र के अंदर खतरा हो सकता है। अतुल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं क्योंकि अतुल हमने देखा है कि बीजेपी किस तरह से इसे वोट जिहाद का मुद्दा बोल रही है। सीधे तौर पे अगर फतवा भी जारी कर दिया जाता है और इससे स्पेशली उन लोगों से जो कम्युनिटी में ही भाजपा और प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं, ये कॉल जो है ये जो दी गई है सज्जाद नोमानी की तरफ से, ऑन ग्राउंड इसका किस तरह से असर दिख रहा है? क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे सपोर्ट और समर्थन देने का जो ऐलान है वो कर दिया महाविकास अघाड़ी को। जी देखिए, इस बारे में जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि हमें किसे वोट देना है किसे नहीं देना है ये हमारा पर्सनल राइट है, क्योंकि चुनाव में वोट देने का अधिकार हमारा अपना है। तो हमें कोई ना बताए कि हमें किसे वोट देना है किसे वोट नहीं देना है। हम इतने मैच्योर्ड इनफ हैं कि जो अपना भला और बुरा समझ सकते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात, कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि चूंकि मौलाना नुमानी एक बड़े जो है धर्मगुरु माने जाते हैं, ऐसे में उनकी बात को नजरअंदाज नहीं किया
जा सकता है। और खास तौर पर इस वजह से भी क्योंकि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं या मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे फिरका परस्त लोगों को आप समर्थन मत दीजिए, तो वो चीजें भी हमें जमीन पे कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है, हमें परेशानी हो रही है। हमारे जो नबी पाक जो है प्रॉफिट मोहम्मद है, उनके बारे में अपशब्द कहने वाले लोगों को खुद जो है उनका समर्थन जो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार है वो करती है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनके साथ मंच साझा करते हैं, तो हमारे सेंटिमेंट्स का भी कहीं कद्र नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर मौलाना कह भी रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को वोट दिया जाए तो इसमें गलत क्या है। तो कहीं ना कहीं एक मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है मिल रही है। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि जो वोटिंग राइट्स होता है, किसे वोट देना है नहीं देना है, ये सियासी चीजें हैं। ये जो धर्म गुरु होते हैं या ऋषि मुनि होते हैं या किसी भी धर्म से जुड़े हुए बड़े जो लोग होते हैं, उन्हें डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उससे उनकी भी छवि डैमेज होती है कि वो सियासी चीजों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं जिसे हम गलत मानते हैं। तो इस तरीके की जो प्रतिक्रिया है वो हमें मिल रही है, रिएक्शंस जो है ग्राउंड लेवल पर मिल रहा है। और लोगों का ये कहना है कि जो इस बार का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आप बात करें, का जो चार्ज है वो लगाया जा रहा है अगर बीजेपी की बात की जाए एमवीए के नेताओं पर। धन्यवाद आपका अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स इन द मीन